have started the types of budget. So we have already seen the different types of budget, like envelope system budget, pay yourself, traditional, 80/20, sub saving account, and no budget. We have also seen the introduction about 50, 30, and 20 budgeting method. Today we are going to see in detail about the 50, 30, and 20 rule. ठीक है. तो बेसिकली 50, 30 एंड 20 रूल को डिटेल में देखने का सबसे बड़ा रीज़न ये है बिकॉज इट इज़ अ वेरी इजी एंड दिस मेथड इज़ वास्टली यूज्ड बाय majority of the people who do budgeting because of the simplicity it carries, the balance it creates, and the flexibility it provides. So let's see what is actually 50, 30, 20 rule is all about. So first, 50% is what you allocate for your needs. So whatever your needs are, okay, so 50% of your income is what you are going to spend on your needs. 30% is going to be uh, spending on your wants, and rest of the 20% will comprise of saving or any other type of debt repayment. Okay, so this is how you are going to do the 50, 30, and 20% budgeting. Okay, so basically 50% is what you spend on your needs or essential expenses like rent, groceries, utilities, transportation. Basically इसमें सारे आपके priority expenses जितने भी है that are you are going to cover in this 50% वाला portion. And then you are going to spend on your wants, which are basically your non-essential items, like entertainment, dining out, hobbies, shopping, subscriptions like Netflix, Amazon. Okay, these all are your wants. And last one is 20% that you are going to save. ठीक है. अब इसका कुछ portion you are going to save for your retirement planning. Some amount you are going to invest in a short term or a long term investments, and some portion you can use for your debt repayment or EMI. Okay, so let's see the benefits of 50, 30, and 20 rule. So basically it is a very simple method, है ना. You have to just make three columns. 50% that is your needs, 30% that is your wants, and 20% is going to be your saving or debt repayment. अब ये 50% के अंदर you are going to list down groceries, ठीक है, rent, utilities, subscriptions, okay, medical expenses. These all expenses you are going to list down in the 50%. अब इसका जो भी sum रहेगा, that sum you have to try to limit your needs expenses within the 50% of your income. ठीक है, जितना भी आप की इनकम है उसका 50% से ज़्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए आपके जितने भी नीड्स वाले एक्सपेंसेस हैं. देन कम्स द 30% वाला पार्ट. अब 30%, अब आपको सपोज यू वांट टू बाय अ प्ले स्टेशन, ठीक है, ये PS5 आपको परचेज करना है. एट दैट टाइम यू हैव टू सी कि भाई मेरे पास वट एवर इनकम आई हैव, क्या प्ले स्टेशन की जो प्राइस है इज दैट एक्सीडिंग माई 30% ऑफ द पोर्शन. ठीक है, मेरी इनकम का 30% जो मैंने लिमिट सेट किया है, क्या वो उसमें आ रहा है, कवर हो रहा है, नहीं. देन यू हैव टू basically wait for 2 more months. You have to save enough money in your 30% want वाला पोर्शन. ठीक है, अगर आपको प्ले स्टेशन लेना है एंड आई विल से कि भाई सेव करके लो, दैट डजेंट मीन कि ये जो 20% वाली आपकी जो सेविंग का पोर्शन है इसमें से आप प्ले स्टेशन PS5 परचेज करने के लिए स्पेंडिंग करेंगे. नो, आपको अगर आपकी वॉन्ट्स भी परचेज करनी है, ठीक है, अब वो वॉन्ट्स आपकी हो सकती है 1 महीने की अर्निंग में नहीं आपकी कवर हो रही है, ठीक है, तो फॉर दैट इन दैट मैटर एज वेल आपको आपकी सपोज करो हर महीने इन वॉन्ट्स वाले पोर्शन यू हैव टू सेव एटलीस्ट 10,000 रुपीज़ पर मंथ. ठीक है, अब हो सकता है आपकी लिमिट वॉन्ट्स की सिर्फ 10,000 हो, तो दैट मीन्स आपको एटलीस्ट 6 मंथ्स तक के आपको कोई भी खर्च नहीं करना है वॉन्ट्स वाले पोर्शन में से. दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू स्पेंड ऑन योर वॉन्ट्स. ठीक है, अब बेसिकली जब आप इस तरीके से आपके नीड्स एंड वॉन्ट्स को मैनेज करते हैं, ठीक है, ईजी होता है इसको मैनेज करना.
And when you set limits for yourself, इट इज़ वेरी इजी फॉर यू टू बी फाइनेंशियली डिसिप्लिन। और जब आप फाइनेंशियली डिसिप्लिन रहेंगे, आप अपने आप को खुद लिमिट करेंगे, इन दैट केस आप बैड फाइनेंशियल डिसीजंस नहीं लेंगे, और आपकी जो ओवर स्पेंडिंग रहेगी वो बहुत हद तक यू कैन कंट्रोल इट, है ना। और उसका क्या इफेक्ट होगा, तो यू विल नॉट एंड अप इन एनी टाइप ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। और आपके पास सेविंग्स ज़्यादा रहेंगी, आपके पास इनफ अमाउंट ऑफ मनी आप इन्वेस्ट कर पाएंगे, grow कर पाएंगे, and over the period of time that invested amount will ripen into a wealth generation. This is how you are going to do your budgeting। ठीक है, तो फर्स्ट इसका बेनिफिट क्या है, इट इज़ अ सिंपल मेथड, इट इज़ सिंपल, इसीलिए इसको फॉलो करना भी आसान है। ठीक है, नेक्स्ट इज बैलेंस। अब बैलेंस कैसे, तो बेसिकली आपकी जो प्रायोरिटी एक्सपेंसेस है, बेसिकली योर बेसिक नीड्स, वो आप सबसे पहले इंश्योर कर रहे हो, उसमें आप कोई डिस्टर्बेंस नहीं कर रहे हो। आप उसका जो पैसा है, ठीक है, जैसे रेंट पे करना है मुझे, ग्रोसरीज लाना है, ट्रांसपोर्टेशन का मेरा खर्चा है, तो ये खर्चों का जो भी मेरा अमाउंट रहेगा, आई एम नॉट गोइंग टू टच इट, है ना, फॉर बाइंग एनी थिंग दैट इज़ माई वॉन्ट। ठीक है, या मुझे कहीं इन्वेस्ट करना है, तो मैं ये ग्रोसरीज वाले पैसे लेकर मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगी। ठीक है, वाई, बिकॉज आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ पहले पूरी होनी चाहिए, सो दैट एक जो बेसिक लेवल की आपकी लाइफस्टाइल है वो आप मेंटेन कर पाओ, है ना। खाना आपके पास, आपको 2 टाइम 3 टाइम आप इंश्योर कर पाओ अपने आप के लिए, हेल्दी फूड, दैट टू हेल्दी फूड। सेकेंड, आपका जो रेंट है, ताकि आपके सर पे छत हो, है ना। थर्ड वन इज ट्रांसपोर्टेशन, आप ऑफिस के लिए जा रहे हो, तो आपके पास पूरे महीने के लिए आपका जो भी ट्रांसपोर्टेशन, बीट मनी फॉर योर पेट्रोल और फेयर फॉर योर बस और टैक्सी, वॉट एवर इट इज़, उसके लिए आपके पास इनफ अमाउंट सेपरेटली सेव होना ज़रूरी है, सो दैट आप कोई भी ऐसा इम्पल्स स्पेंडिंग करेंगे तो उस टाइम पर आपका नीड्स यहाँ पर किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होंगे। ठीक है, तो इट ऑल्सो इंश्योर्स एक बैलेंस आपके पास क्रिएट रहता है। ठीक है, एक बैलेंस क्रिएट करता है बेसिकली, और वो बैलेंस रहेगा तो आप फाइनेंशियली स्ट्रेस फ्री लाइफ जिएंगे, and you are going to enjoy your life very well, and you will have a enough amount saved that you can use for your future or invest। And last one is flexibility, you can adjust the percentage slightly based on the फाइनेंशियल गोल दैट यू हैव सेट इन। अब बेसिकली ऐसा भी हो सकता है कि आपकी वॉट एवर इनकम यू हैव, वो इनकम हो सकता है उसमें से 50% की बजाय आपका सिर्फ 30 या 35% ही नीड्स की ज़रूरतें हैं आप। ठीक है, नीड्स में जो आपकी स्पेंडिंग है वो सिर्फ आपकी 35% ऑफ योर सैलरी है, तो यहाँ पर जो आपका 15% बच गया है, दैट 15% का मैं क्या करूँगी अब, आई विल बाय डाइसन, नो। डू आई विल बाय PS5, नो। क्या मुझे iPhone 17 लेना चाहिए, नहीं। ये 15% आई विल एड ऑन टू माई 20%। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये भी 35%। अब ये 35% मेरे पास सेविंग्स आ गई। ठीक है, अब ये 35% सेविंग्स में से आई विल बाइफरकेट इट। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट का जब हम देखेंगे, इन दैट वीडियो आई एम गोइंग टू शो यू हाउ एक्चुअली इन्वेस्टमेंट्स आर डन। ठीक है, पूरे सारा पैसा आपको एक जगह एक ही इंस्ट्रूमेंट में नहीं इन्वेस्ट करना होता है, यू हैव टू बाइफरकेट योर मनी अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल गोल यू हैव फिक्स्ड। ठीक है, वेल्थ जनरेशन के नाम पर आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि भाई मेरे को 10 साल बाद सिर्फ 2 करोड़ रुपए चाहिए एंड आई एम सॉर्टेड, नो। बिकॉज आज जो 2 करोड़ रुपए की वैल्यू है वो 10 साल बाद नहीं रहेगी। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू हैव टू मैनेज। तो आपको रिटायरमेंट प्लानिंग अलग करनी होगी, आपको वेल्थ जनरेशन के लिए अलग करना होगा, आपको मेडिकल इमरजेंसी के लिए अलग करना होगा। ठीक है, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू फिक्स योर फाइनेंशियल गोल। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू द नीड यू कैन एडजस्ट योर फाइनेंशियल गोल्स, एंड यू कैन सॉरी, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ योर फाइनेंशियल गोल, आप आपका जो भी बजटिंग का परसेंटेज है दैट यू कैन एडजस्ट, एंड ये क्या हो रहा है, आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ 50, 30 and 20 rule। Next, there are some key considerations that we have to keep in mind while doing our budget। तो इसमें सबसे पहला वाला है इनकम वेरिएबिलिटी। ठीक है, तो बेसिकली इनकम वेरिएबिलिटी क्या होता है कि सपोज करो आपकी जॉब, वट एवर जॉब यू आर इन, उसमें जो इनकम है आपकी वो फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं है इन द सेंस मंथली जो इनकम आपको मिल रही है वो फिक्स्ड अमाउंट नहीं है। ठीक है, इट इज़ नॉट फिक्स्ड। तो इन दैट केस आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, तो यू हैव टू एडजस्ट द परसेंटेज मंथ बाय मंथ। ठीक है, अब कैसे मंथ बाय मंथ, तो सपोज करो
आपकी जो वॉन्ट्स है, तो वॉन्ट्स वाला जो पोर्शन रहेगा आपका, दैट इज 30%. तो समटाइम्स यू हैव टू रियली एलिमिनेट योर वॉन्ट्स फॉर दैट पर्टिकुलर मंथ. अगर आपका सपोज कोई प्रोजेक्ट अभी आपके पास नहीं है ना, जैसे गिग बेस या प्रोजेक्ट बेस्ड जॉब्स होती है या फिर फ्रीलांसिंग की जॉब होती है, तो इसमें आप एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हो और उसके बाद यू गेट अ मनी. अब आपके पास नेक्स्ट पैसा कब आएगा? जब आपको कोई प्रोजेक्ट मिलेगा, ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करेंगे तभी आपको पैसा मिलेगा. तो तब तक के क्या करना है, ठीक है, इन दैट केस यू हैव टू एडजस्ट योर वॉन्ट्स और समटाइम्स यू हैव टू एलिमिनेट इट. और एक चीज आपको करनी है, दैट इज मेकिंग एन इमरजेंसी फंड. ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट because there is a saying that you are just one मेडिकल इमरजेंसी अवे फ्रॉम गोइंग इनटू बैंकरप्सी. ठीक है, क्या मतलब हो रहा है इसका, कि एक मेडिकल इमरजेंसी, एक बड़ा मेडिकल ट्रीटमेंट या एक बड़ी आपको क्रोनिक इलनेस आपके फैमिली मेंबर में किसी को हो गई, एंड यू विल एंड अप इन अ फाइनेंशियल क्राइसिस. ठीक है, अगर आपने इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ है, आपने एक इमरजेंसी फंड नहीं क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, या आपने एक मेडिकल एक्सपेंस के लिए एक सेपरेट फंड नहीं क्रिएट किया है, ठीक है, तो उस टाइम पर आपके पास जो असेट रहेंगे वो असेट आपको सोल्ड आउट करना पड़ेगा, है ना. जैसे भी हम देखते हैं कि एक बेसिक आपको एंजियोप्लास्टी भी करनी है. एंजियोप्लास्टी इज वेरी कॉमन इन टूडेज टाइम, है ना. तो एंजियोप्लास्टी करनी है आपको, बेसिक करवानी है, तो यू हैव टू पे अराउंड 2 to 3 लाख रुपीज. अब इट इज फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल इट इज स्टिल अ वेरी क्या बोलेंगे, इट इज़ वेरी बिग थिंग, बिकॉज आपकी मंथली इनकम होती है, आपके पास ईएमआईज देनी होती है, डिफरेंट डिफरेंट आपके हो सकता है आपने एसआईपी लिया हो, म्यूचुअल फंड्स लिए हो, ठीक है, आपको दूसरे इंश्योरेंस के प्रीमियम्स पे करने होंगे, ठीक है. तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस ऑलरेडी आपके पूरे फिक्स्ड है. अब उसमें एक एक्सपेंस आपके लिए बढ़ चुका है, ठीक है, तो इन दैट केस आपको कोई असेट नहीं बेचने की ज़रूरत पड़ेगी, या आपने कोई एफडी इन्वेस्ट किया हो, तो अब ऐसे टाइम पे क्या होता है, मोस्टली पीपल जस्ट विड्रॉ देयर एफडी, प्रीमेच्योर एफडी, और दे सोल्ड आउट देयर एसेट, है ना. कोई बड़ी और उससे इमरजेंसी आ गई, आपको ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ी या एनी अदर, ठीक है, बीमारियों के अलावा भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं. सपोज करो आपके फ्लड आ गया, तो आपका घर डैमेज हो चुका है, फायर जैसा कोई इंसिडेंट एक्सीडेंट हो गया हो, तो उस टाइम पर हो सकता है आपको फिर से रिपेयर करवाना हो, मेंटेनेंस करवाना हो, तो एक बड़ा आपको अमाउंट की ज़रूरत है. तो इन दैट सिनेरियो एज वेल ये इमरजेंसी फंड आपको काम में आएगा, ठीक है. और एक चीज़ ये काम में आएगा, व्हेन यू विल नॉट गेट अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, या आपका ले ऑफ हो चुका है, ठीक है, इवन इफ यू आर अर्निंग मंथली, हो सकता है देर इज अ पॉसिबिलिटी एंड देर इज अ वेरी सीवियर थ्रेट टू ऑल द जॉब्स एंड ऑल द सेक्टर्स. ठीक है, एक थ्रेट कौन सा है, दैट इज एआई, कि आज ले ऑफ का परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. टू अवॉइड दैट हम क्या करेंगे, यहाँ पर यू आर गोइंग टू सेव अ इमरजेंसी फंड, सो दैट एटलीस्ट आपके पास 6 महीने का बैकअप होना चाहिए आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ का, ठीक है. अब ये कितना पैसा होना चाहिए, तो बेसिकली सपोज करो आपके 30,000 रुपीज़ आपका टोटल नेसेसिटीज़ का स्पेंडिंग है, ठीक है, एक मंथ का, तो आपको टोटल 6 मंथ का यहाँ पर स्पेंडिंग होनी चाहिए, ठीक है. तो 3 6 18, मतलब 1,80,000 रुपये आपके पास सेव होने चाहिए. सबसे पहला टारगेट आपके पास क्या होना चाहिए, कि मैं मेरा इमरजेंसी फंड क्रिएट कर लूँ, और ये इमरजेंसी फंड जो भी आप अमाउंट बनाएंगे, तो ये अमाउंट आपका आपको हाईली लिक्विड इंस्ट्रूमेंट में सेव करके रखना है. यू हैव टू सेव इट आइदर इन सेविंग अकाउंट में रखो उसको, ठीक है, ऐसी कोई इंस्ट्रूमेंट में आपको सेव करके रखना है जिससे जल्द से जल्द आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकें. तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि आपको इमरजेंसी फंड यहाँ पर क्रिएट करना है. नेक्स्ट इज इन्फ्लेशन, ठीक है. अब इन्फ्लेशन कैसे, सपोज करो यू आर करंटली लिविंग इन अ टायर 2 और टायर 3 सिटीज़, जहाँ पर आपको रेंट देना हो रहा है अराउंड 12,000 रुपीज़. अब सेम वही फ्लैट अगर आप मुंबई पुणे जैसे मेट्रो सिटीज़ में मूव कर गए और वहाँ पर आपको लेना पड़ा रेंट पर, तो उन इन दैट केस यू हैव टू पे अराउंड 30 to 35,000 रुपीज़ फॉर दैट सेम फ्लैट, ठीक है. तो अब यहाँ पे क्या हो गया, आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ जाएंगी, एक लाइफस्टाइल आपको मेंटेन करना पड़ेगा, तो आपकी स्पेंडिंग भी बढ़ जाएंगी. तो इन दैट केस ऐसा कोई अगर इन्फ्लेशन हिट होता है, तो आपका जो 50% का पोर्शन है, दैट यू हैव टू इंक्रीज टू 60 to 65%, ठीक है. तो अब फिर हम बचा हुआ पैसा कैसे मैनेज करेंगे, क्या हम सेविंग्स को 10% कर देंगे, नो, ठीक है. what you have to do, you have to shrink your wants वाला portion to 20%, ठीक है. this is how you are going to do your
adjustment when any type of inflation will hit your budget. And last one is you have to make a separate consideration while making a budget for a separate amount of fund for supporting your siblings in their education or taking care of your elderly parents, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स, ये सारे कंसीडर करना ज़रूरी है वाइल डूइंग अ बजट। क्यों करना है? ताकि हम बजट एक हमारा ख्याली पुलाव ना, ठीक है। that budget has to be a real practical blueprint that you are going to execute, that you are going to follow, ठीक है। ये हमारा प्राइमरी पर्पस है वाइल मेकिंग अ बजट, कि हम उसको उतनी अच्छी तरीके से फॉलो भी कर पाए और उसको फॉलो करने के साथ साथ वो बजट से हम हमारा जो भी मनी हम मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, वो मनी बेहतरीन तरीके से हम मैनेज कर पाए एंड हम ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर पाए, ओवर स्पेंडिंग अवॉइड कर पाए एंड लॉन्ग टर्म में हमारे पास अच्छी खासी हम वेल्थ जनरेट हो। दिस इज वॉट इज ऑल अबाउट 50, 30 एंड 20 बजटिंग मेथड, ठीक है। अब ये बेसिक एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर इन्होंने लिया है 50,000 रुपीज इज द इनकम, जिसका 50% दे आर गोइंग टू allocate for the needs, 30% for wants and 20% for सेविंग्स और डेट रीपेमेंट। फिर इसके अंदर आपको बाइफर्केट करना होगा कि इमरजेंसी फंड के लिए सेविंग्स मेरी 3,000 है, इन्वेस्टमेंट के लिए मेरी सेविंग्स है 4,000 रुपीज़ एंड आई हैव अ EMI दैट आई हैव टू पे मंथली 3,000 रुपीज़। तो दिस इज हाउ यू हैव टू बाइफर्केट इट अगेन, ठीक है। तो ये एक बेसिक एग्जाम्पल देख लिया हमने। दिस इज द टेम्पलेट विच यू कैन यूज, ठीक है। अब ये टेम्पलेट का फ़ायदा क्या है? सबसे पहली चीज़, आपके पास दो यहाँ पर कॉलम रहेंगे, ठीक है। फर्स्ट इज प्रोजेक्टेड कॉस्ट एंड सेकेंड वन इज एक्चुअल कॉस्ट। जब आप बजट बनाएंगे तो बजट इज समथिंग विच इज अ प्री डिटरमाइंड प्लान और वी कैन से फोरकास्ट कर रहे हैं हम। तो हर एक स्पेंडिंग की हमारी एक प्रोजेक्टेड कॉस्ट रहेगी, अंदाज़ा लगाएंगे हम, ठीक है। जैसे रेंट है, अब रेंट तो फिक्स रहेगा, ठीक है। प्रोजेक्टेड आपने रेंट किया 12,000 रुपये, वो एक्चुअल भी 12,000 पे करेंगे, बट हो सकता है ग्रोसरीज आपने प्रोजेक्ट की 8,000 रुपये, बट आप यू आर अ इम्पल्स बायर और आपको ऑफर्स बहुत ज़्यादा दिखे तो आपने 8,000 की जगह 10,000 रुपये आपके ग्रोसरीज में स्पेंड कर दिए, तो यहाँ पर एक्चुअल कॉस्ट कितनी आ जाएंगी आपकी 10,000 रुपीज़। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू स्पेंड योर नीड्स एंड देन यू हैव टू मैनेज योर वॉन्ट्स। दिस इज वॉट इज ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट एंड देन डेट रीपेमेंट। अब लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारी रहेगी दैट इज़ योर समरी टोटल। यहाँ पर आप एक्चुअल में आपने कितना अच्छे से डिसीजंस लिए हैं, आपने कितना स्ट्रिक्टली आपका बजट फॉलो किया है, ये सब कुछ आपको एंड में समरी टोटल्स में दिखाई देगा, ठीक है। तो दिस इज़ द बेसिक टेम्पलेट विच यू कैन डाउनलोड फ्रॉम गूगल, ओके। लेट्स सी, सो वी हैव टूल्स फॉर बजटिंग एज वेल। एक हमने बेसिक टेम्पलेट देख लिया, इसके अलावा भी और बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के डिज़ाइंस के टेम्पलेट्स होते हैं। आप खुद भी बना सकते हो फिजिकली पेन पेपर यूज़ करके, आप बजटिंग ऐप्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली आप गूगल प्ले स्टोर पर या ऐप स्टोर पर यू कैन डायरेक्टली टाइप बजटिंग ऐप और आपको पेड या फ्री वाले बहुत सारे डिफरेंट टाइप के बजटिंग ऐप्स मिल जाएंगे। और एक मेथड है दैट या टूल हम जिसको बोलेंगे दैट इज़ एक्सेल, ठीक है। अब एक्सेल में एक्चुअली में कैसा होता है दैट आई एम गोइंग टू show you a little bit, okay, just wait a second। ठीक है, just I have to confirm which slide you are watching, ठीक है। बेसिकली आपको क्या करना होगा यहाँ पर, यू हैव टू गो टू द न्यू में जाकर यू कैन सर्च हियर बजट, ठीक है। आपने टाइप कर लिया बजट, यहाँ पे आपको रिजल्ट मिल जाएंगे, ठीक है। पर्सनल बजट के लिए हमारे पास यहाँ पे 33 टाइप्स के टेम्पलेट्स हैं। वेडिंग एक्सपेंसेस, पर्सनल मंथली बजट, पार्टी प्लानर, फूड बजट, ठीक है, फैमिली बजट प्लानर, ठीक है। लेट्स सी दिस वन, ठीक है। अब आपको इसको क्लिक करना है, यू हैव टू क्रिएट इट, ओके।
तो दिस इज हाउ बेसिक टेम्पलेट ऑफ बजट इन एक्सेल। ठीक है, एक्सेल में बनाना आसान भी है, ऑटोमेटिक सारी कैलकुलेशंस हो जाती है हमारी। ठीक है, और एक चीज़ इसमें सेफ भी होता है, यू डोंट हैव टू मग अप विद डिफरेंट फोल्डर्स या फिजिकल इमेजेस, या फिर आपको स्टोर करना है या एप्लीकेशन है फ़ोन में, तो हो सकता है फ़ोन लॉस्ट हो गया तो उस टाइम पर आप क्या करेंगे, बेसिकली आप ड्राइव में भी सेव करके रख सकते हो, है ना। तो यहाँ पर प्रोजेक्टेड मंथली इनकम एंड एक्चुअल मंथली इनकम आपको दी गई। ठीक है, देन यू हैव डिफरेंस। ठीक है, जस्ट वेट अ सेकेंड। ठीक है, दिस इज हाउ ट्रांसपोर्टेशन, अब ट्रांसपोर्टेशन में व्हीकल पेमेंट, बस, टैक्सी फेयर, इंश्योरेंस, लाइसेंस, फ्यूल, मेंटेनेंस। ठीक है, देन यू कैन सी द हियर लोन, स्टूडेंट लोन और क्रेडिट कार्ड पेमेंट, ऑल्सो यू कैन एडिट इट। ठीक है, अभी एंटरटेनमेंट यहाँ पर मूवीज आ गया है, मूवीज की जगह आई कैन राइट इट नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन। ओके, तो आप इसको आपके हिसाब से यू कैन एडिट इट एज वेल। ठीक है, टोटल प्रोजेक्टेड एक्सपेंसेस, आपने कितना प्रोजेक्ट किया था, एंड टोटल एक्चुअल एक्सपेंस। ठीक है, अब ये कहाँ से आया अमाउंट, तो बेसिकली यहाँ पर आपने प्रोजेक्टेड कितना किया, $1500, $60, $50। ठीक है, आप इसको इंडियन करेंसी में भी यूज़ कर सकते हो। ये पूरा जब आप प्रोजेक्टेड कॉलम्स आप फिल करेंगे तो यहाँ पर इसका सम टोटल आपको दिखाई देगा, दैट इज गोइंग टू बी योर प्रोजेक्टेड एक्सपेंस, एंड लास्ट में आपको मिलेगा टोटल एक्चुअल एक्सपेंस जो आपको मंथ एंड में दिखाई देगा, एंड यहाँ पर लास्ट में टोटल डिफरेंस आपको मिलेगा। ठीक है, अभी $20 यहाँ पर क्या है, दैट इज योर बेसिकली डिफरेंस किसके बीच का, प्रोजेक्टेड एंड एक्चुअल। अभी $20 प्लस में है या माइनस में है, तो इट इज़ इन प्लस। ठीक है, अब प्लस में है मतलब आपने जो टारगेट सेट किया था आपने उससे कम उससे कम जो है तो स्पेंडिंग की है, तो बेसिकली यू हैव डन अ वेरी गुड बजटिंग। ठीक है, बजटिंग, और जो आपने फाइनेंशियल डिसीजंस लिए हैं वो बहुत अच्छे लिए। ठीक है, अगर ये रेड में आएगा या माइनस में आएगा, दैट मीन्स आपने ओवर स्पेंडिंग कर दी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट बजटिंग। ठीक है, जस्ट वेट अ सेकेंड। ठीक है, so this is all about budgeting. If you have any other doubt, or you want any separate discussion about any other topic with regards to personal finance, then you can comment me down. I will try to make video on that. uh, I will also request you all to please give your feedback regarding the financial literacy series. It is basically an initiative which was started 2 years ago in my college, and after seeing the feedback I have decided to forward this knowledge to everyone around the world. So it's a small request for all of you to please kindly give your feedback. Thanks for watching.